Hello, it's a very lovely, cool, wonderful, and fine evening from here in Delhi, and hope each one of you, as always, are absolutely fine. We pray to the Almighty to keep each one of you safe, sound, and shower upon you supreme success. Examinations time are nearing by, and we also hope that each one of you are virtually now burning midnight oils, doing lots of hard work for this particular upcoming examination. And as I said, we pray to the Almighty to shower supreme success upon each one of you. So, on such particular note, we start this particular session. As each one of you know, it's a special session which we are conducting because of the recent announcement by your esteemed institute, Premier Institute, and which has taken what we call almost everyone by a bit of surprise, and to somebody almost by a shock. But now the decision has been taken. Your examinations are going to be conducted in an online mode, as each one of you by now are very well aware of it. And lots of videos have already what we call published in your what we call YouTube platform and various other media platforms. So each one of you are very well aware of this particular fact. But at the same time, due to this particular announcement just prior to the examination, as I said, it has taken many among us almost by great surprise. But at the same time, we must understand that it's a decision now, it has been taken, and it is very hard to revert it. So important point is that decision has been taken. Now you have to prepare and mold your studies in line of what we call that announcement. Correct? So that is the what we call main core crux issue, and this is going to be the main theme of what we call this particular session, especially conducted session. I have been receiving of late lots of messages from the student fraternity, but unfortunately we were busy as we are much engrossed at final level, so that's the basic problem. So first we had to cater to their needs, and now we got a bit of time. In fact, I must say that I squeezed time to conduct what we call this particular session. Correct. So your examinations are going to be held in online mode. Each one of you are absolutely well aware of it. But let me tell you in the beginning why CMA has taken this particular decisions. Remember one thing: CMA is a premier body. It's not a small body. It's a premier body. They are catering to thousands of students, not only in India but overseas also. And to conduct the examination for such a large number of students is a very tough task. So there must be what we call some reasons. There must be what we call some constraining factors for them to actually take up this particular decision. So time for us to not to complain against the same, accept the decision wholeheartedly. And there is, as said earlier, a bit moment ago, there is no point in criticizing the decision. There is also no point in complaining the same, because the more complaining nature we shall have, the uh, lesser will be what we call devotion towards our studies and preparation. So my sane advice for you is just think of this particular fact that decision has been taken, and I will actually explain it. This particular decision is almost like a blessing in disguise for you, so you need not require to worry. When I started the discussion, I also told that it has taken us by surprise, and especially the student fraternity. Uh, they are virtually um, at sea with respect to what we call the preparation strategy now, and there are lots of confusion, lots of chaos, and the students fraternity is virtually scared, and many among us are absolutely feared that what will happen to our strategy. We had prepared for the descriptive what we call examinations, so do we need to actually change the what we call our strategy style and preparation methodology, or what sort of? So they are virtually feeling almost like almost blank in their mind. So first of all, my first sane advice is to keep yourself absolutely cool, absolutely calm, composed, because this is the main facet. Remember, true test of manhoodness comes to fore when chips are down. वो कहावत है ना इंग्लिश में कि व्यक्ति की शख्सियत का पता तब लगता है जब सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स हो। तो अब मैं हिंदी में आता हूँ। शुरुआत में मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो बेटे, डिसीजन ले लिया है, घबराने की पहले तो कोई बात नहीं है, संयम रखना है। मुझे मालूम है कि आप लोगों में डर है, असमंजसता है, कन्फ्यूज़न भी है। क्या होगा? कई बच्चों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे? हमने तो डिस्क्रिप्टिव
पेपर के लिए अपनी स्ट्रेटेजी करी थी, पिछले 9-10 महीने से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कई बार एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। अ, तो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा-सा तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे मालूम है कि एक अगर स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो वाक़ई में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और निश्चित रूप से थोड़ा-सा संयम रखना ऐसे समय पर, ऐसे हालातों में मुश्किल भी होता है। लेकिन अभी मैंने कहा था ना, ट्रू टेस्ट ऑफ मैनहुडनेस कम्स टू फोरे व्हेन चिप्स आर डाउन। तो जब सिचुएशन थोड़ी-सी डाउन होती है, वहीं पर हमारी शख्सियत का पता लगता है कि हम में कितना धैर्य है और उस सिचुएशन को हम किस तरीके से फेस करेंगे। और इंग्लिश में एक दूसरी कहावत भी है, मेन आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज। इसका मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो आम लोगों से थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर तुम लोगों को ना मेन बनना है, बॉयज नहीं। समझ में आया? तो नंबर 1, आपके दिमाग में जितनी भी शंकाएँ हैं, जितनी भी आशंकाएँ हैं, जितना भी डर है, जितना भी स्केयर है, मैं वादा करता हूँ इस सेशन के बाद वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी में किसी तरीके की तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे पहला डर जो है, क्या सर हमें अपनी स्ट्रेटेजी में तब्दीली लानी है? बिल्कुल नहीं लानी है। आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन है, हालाँकि वैसे तो ये सीएमए इंटरमीडिएट के लिए है, मेनली क्योंकि सीएमए फाइनल के लिए मैंने ऑलरेडी सेशन कर दिया है। अब जो ये सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 1 या 2 के, ख़ास तौर से आज का जो पर्टिकुलर सेशन है, इसमें नॉर्मल बातें तो मैं वही करूँगा जो मैंने ग्रुप 1 के लिए भी करनी है और ग्रुप 2 के लिए भी करनी है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा-सा हम आपको एक सैंपल पेपर भी मैंने बनाया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो बेसिकली इस पेपर को देखने के बाद आपकी जितनी भी शंकाएँ हैं, वो सारी दूर हो जाएँगी। पहले तो आप निश्चिंत रहें। अब मैं आपके दिमाग में उभरते हुए सवालों की तरफ आता हूँ। सर, सबसे पहले तो अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ मेरा आंसर है नंबर 1, और इसके बाद कोई भी बार-बार ये मैसेज लिख कर के ना पूछे कि सर हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? जैसे बेटा आप अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे थे, जैसे आप अभी तक पढ़ रहे थे, जैसे आप अभी तक अपनी तैयारी कर रहे थे, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी तैयारी की हमें ज़रूरत होगी, नंबर 1। नंबर 2, निश्चित रूप से अब ऑनलाइन मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू बेस्ड या मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के साथ क्वेश्चंस होंगे। अब जब क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हों, एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है जैसे एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प हैं, आपको सिर्फ उस पे टिक मार्क करना है। हालाँकि जो नोटिफ़िकेशन है, उसमें अभी तक ये क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि पेपर ऑनलाइन मोड होगा। अब ऑनलाइन मोड में अल्टरनेटिव वैकल्पिक क्वेश्चंस ही हो सकते हैं, नंबर 1, हालाँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है, जितने भी क्वेश्चंस आएँगे उसमें विकल्प मौजूद होगा और आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आपने टिक मार्क करना है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर तुम लोगों को किसी बहकावे में किसी के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वक़्त नहीं लगेगा। आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद यूट्यूब में या वेरियस मीडियाज़ के थ्रू आपके सामने डिफरेंट एड्स आ जाएँगे, हमने 10,000 क्वेश्चन बैंक बना दिया है, 10,000 का 1 लाख का क्वेश्चन बैंक बना दिया है, 10 लाख का क्वेश्चन बैंक बना दिया है, आप इसको ले लो, बस इसी में से क्वेश्चन आएँगे। इस तरीके के बहकावे में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं। याद रखो, चाहे क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म में हो, एमसीक्यू फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, ट्रू फॉल्स में हो या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में हो, आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर तभी दे सकते हैं अगर आपने चैप्टर को पूरी गहनता से, पूरी गहराई से उसके अंतिम अक्षर तक पढ़ा है। आप थोड़ा-सा इमेजिन करो, अब कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मान लेते हैं बैंकिंग कंपनी का चैप्टर है, अगर मैंने बैंकिंग कंपनी के चैप्टर में 10-12 लेक्चर नहीं लिए होते और मैंने आपको केवल 10,000 का एक क्वेश्चन बैंक करा दिया होता, तो क्या आपकी कुछ समझ में आता? आपकी तैयारी नहीं हो सकती थी। यानी कि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो कहने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी तैयारी चल रही थी, वैसी ही आपकी तैयारी चलनी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही अब क्यों ना हो। तो जहाँ तक इनफैक्ट आपके पहले क्वेश्चन मैंने कहा कि सर तैयारी करें, उससे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है, मुझे मालूम है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पहले मैं उसी पर आता हूँ। अभी मैंने कुछ लम्हा पहले कहा कि पेपर का जो पैटर्न होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगे। अभी आप खुद देखेंगे, अभी चिंता मत करो, मैंने ये सिंपल पेपर बना दिया, मैं अभी आपके सामने इसको ओपन भी करूँगा। जैसा आपके क्वेश्चन्स आते थे, वैसे ही आएँगे, नंबर 1। बस ये है कि उन क्वेश्चन पर अब वैकल्पिक आंसर्स होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो मैं अब तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।
उसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन है तैयारी कैसे करें, उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, आप मन के अंदर यही मान के चलो जैसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आप बिल्कुल वैसे तैयारी करते रहो, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हों, किसी भी तरीके के क्वेश्चन्स हों, आप उसका आंसर तभी देने में सक्षम होंगे जब आपने गहनता से, गहराई से पूरे पूरे कंटेंट्स को पढ़ा है और फुल कवरेज आपने अपने कोर्स की करी है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जैसे तीसरी चीज, इस वक्त किसी के बहकावे में भी आने की जरूरत नहीं है। जो कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि 10,000 का क्वेश्चन बैंक, 15,000 का क्वेश्चन बैंक, 1 लाख का क्वेश्चन बैंक, इस तरह की बातों में ना आए। चौथा, इधर उधर की बातों पे विश्वास ना करें कि हमारे फ्रेंड्स ने ये कहा, हमारे एक र्यूमर आजकल मार्केट में ये भी चल रहा है कि तुम्हें अब जो पेपर देना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। अरे ऐसी पॉसिबिलिटी कहीं हो सकती है? आप लोग मैच्योर्ड हो, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क करना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बकायदा आपके पास एक अपने कुछ रफ शीट्स होनी चाहिए, या हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर्स वो रफ शीट प्रोवाइड करें, लेकिन अ, अगर आप घर से बैठ के दे रहे हैं तो अपने साथ रफ शीट्स भी रखें। याद रखें क्वेश्चन अभी भी आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप अभी तक कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव तरीके से जैसे आप कर रहे थे, क्वेश्चन अभी भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आपकी तैयारी में किसी तरीके का बदलाव नहीं आएगा। ये कुछ बातें मुझे करनी थी क्योंकि बच्चों के दिमाग में बड़ा संशय है, बड़ा डर है, बड़ी असमंजसता है, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। अपनी जैसा जैसे ध्यान लगा कर आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब मैं जल्दी से सस्पेंस को खोलता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, और यहाँ पर मेरी सीएमए इंस्टीट्यूट से भी एक रिक्वेस्ट है। आज बच्चों के साथ-साथ बात करने का ही मेरे को मौका मिला है, सीएमए के इंस्टीट्यूट से भी बात कर लूँ। तो मैंने पहले ही इस बात को माना है कि सीएमए प्रीमियर बॉडी है, उनके अपने कुछ रीज़न्स रहे होंगे, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जिसकी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उसमें देश के बच्चे भी होते हैं, विदेश के बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। ऑलरेडी वक्त बीत चुका है, जून से लेकर के अब दिसंबर तक हम आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये निर्णय लिया कि इसको मर्ज तरीके से, यानी कि जो जून का जो अटेम्प्ट दे रहे थे और जो दिसंबर का अटेम्प्ट दे ही रहे थे, उनका एग्जामिनेशन इकट्ठे लिया जाए। अब इतने बड़े लेवल पर जब एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो उनके असेसमेंट के लिए भी वक्त चाहिए, तो शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अब की बार ये डिसाइड करा कि हम एमसीक्यू बेस्ड, या अभी एमसीक्यू बेस्ड तो उन्होंने नहीं करा है, उन्होंने ये कहा है ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन हो, ताकि उसकी असेसमेंट जल्दी हो सके और आपका रिजल्ट जल्दी पब्लिसाइज हो सके, ताकि जो देरी हो गई है उस वक्त की कुछ कंपनसेशन हो सके। शायद ये एक मजबूरी रही हो, करेक्ट। लेकिन मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर हमें अब इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करने नहीं करना है। इस वक्त जितना हम इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करने की सोचेंगे, वो गलत माना जाएगा, वो शोभनीय भी नहीं है। वो इसलिए कि इंस्टीट्यूट भी प्रॉब्लम में आएगा, आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। अगर इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम में आएगा तो निश्चित रूप से आप प्रॉब्लम में आएंगे। अब मेरी इंस्टीट्यूट से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बनाया है, अगर सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, तो या कोई भी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं और ऊंचे ओहदों पर वहां पर हैं या मैनेजिंग पोजीशंस पर हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो अपना एमसीक्यू पेपर बनाएं वो इस तरीके से बनाएं कि बच्चों को बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना लगे। क्वेश्चंस आप उसी फॉर्मेट में दें, पेपर का वही फॉर्मेशंस होनी चाहिए जो इससे पहले आप देते रहे हैं। लेकिन बस ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बजाय उसमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूछते कि आप उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दें। कैसे? अब पहले तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो पेपर भी मैंने बनाया है, ये मैंने इंस्टीट्यूट के ही पुराने पेपर्स या आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर्स, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, और उसी क्वेश्चंस को हमने उसमें थोड़ा मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके इंस्टीट्यूट के ही पेपर्स है, इसमें हमारी कोई ओरिजिनलिटी है ऐसा कहना गलत होगा, करेक्ट। लेकिन अब जो पहला क्वेश्चन है, याद रखें, आपको अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान से दें। आपका जो पहले पेपर होता था कंपनी अकाउंट्स का, सीएमए की हम बात कर रहे हैं, सीएमए ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स का आपका पेपर होता था, उसके 2 हिस्से होते थे। सेक्शन ए जो कि कंपनी अकाउंट से डील करता है, और ऑडिट, क्योंकि ऑडिट अब मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ जो चर्चा होगी उससे कंपनी अकाउंट्स की होगी, करेक्ट। अब कंपनी अकाउंट्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता था वो कंपलसरी होता था, isn't it or not? क्वेश्चन नंबर 1 वैसे भी आपका कंपलसरी होता था, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे। और उसके अलावा जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस होते थे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते थे।
अब आप देखो आपके क्वेश्चंस में फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आपका जो डर है ना वो मिट जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता था आपका 6 मार्क का होता था। उसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन बिल्कुल मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा। ये आपके आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर्स या रिवीजन टेस्ट पेपर से लिए गए हैं। करेक्ट? इसमें आपको सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन होता था उसको आपने टिक मार्क करना होता था। करेक्ट? ये आपका क्वेश्चन नंबर है। इसके आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप वैसे तो मैंने कहा मैंने इंस्टीट्यूट की साइट से ही लिए हुए हैं, बस थोड़ा-सा हमने उसमें चेंज कर दिया है, तो इसमें कोई ओरिजिनैलिटी है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हमारी हमने इसको थोड़ा-सा क्रिएट कर दिया है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर दी है, दैट्स ऑल। पहला क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट वैसे ही रखा है जैसे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहें तो डाउनलोड लिंक मैं अभी आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएँगे तो वहाँ मैंने टेलीग्राम का अपना जो चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लिक कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये काम आप सैटरडे के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सैटरडे के बाद ही हम अपलोड करेंगे, यानी कि संडे को आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी तरह का चेंज नहीं है, इसके 6 के 6 क्वेश्चन आंसर इसके जो 6 पार्ट हैं उसके आंसर्स यहाँ मौजूद हैं। तो क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएँगे, क्योंकि इस सेशन में हम क्वेश्चन या उसके सॉल्यूशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेपर के पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबली आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट ए के अंदर 6 क्वेश्चन होते थे, करेक्ट? और क्वेश्चन ए के अंदर पार्ट बी होता था जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग मिलता था। इज़न्ट इट और नॉट? यानी कि ये भी देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। इसमें भी आपको जो करेक्ट मैचिंग है उस पे सिर्फ क्लिक करनी है। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में और पार्ट बी में आपने देखा कि 4 मार्क्स का है, इसके अंदर 1 क्वेश्चन है और 4 इसके अंदर ये तुम्हें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको मैच करना है और ये टोटल 4 मार्क्स का है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट सी होता था आपका वो ट्रू या फॉल्स से होता था। बिकॉज़ इसमें भी आपको सिर्फ टिक करना है या सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है, तो टेक्निकली ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। मैंने बताया ना, अभी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं कहा है कि एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर होगा। एमसीक्यू का मतलब होता है उसमें 4 विकल्प होते हैं, करेक्ट? ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है उसमें अल्टरनेटिव आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, उसमें भी विकल्प होते हैं, बस पॉइंट यहाँ पर ये है। अब लेकिन उसमें विकल्प जो हैं, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, डिफरेंस ये है। तो आपने देखा जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, करेक्ट? अगर आप इसको देखें तो ये टोटल 8 मार्क्स तो ये हो गए और 6 मार्क्स ये हो गए। 14 मार्क्स का तो आपका पहला क्वेश्चन ही हो गया, इज़न्ट इट और नॉट? 14 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन हो गया, वो हमेशा से ऑब्जेक्टिव टाइप आता था, तो उसके लिए तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। अब जो बाकी 4 क्वेश्चंस होते थे उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होते थे। हालाँकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ डाल तो दिया है। जैसे मान लेते हैं ये डिबेंचर का क्वेश्चन, मान क्या लेते हैं ये डिबेंचर का ही क्वेश्चन है, हालाँकि इस क्वेश्चन को मैं हटा दूँगा। उसका कारण क्या है कि ये जो क्वेश्चन है जो चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से ये करा नहीं गया है। इस क्वेश्चन को मैं रिप्लेस करूँगा, लेकिन अपने पॉइंट को बताने के लिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ। इससे पहले जैसे आपको अब क्वेश्चन आता था, बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे। तो क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे, अब आपको 4 में से 3 करने होते थे। इसका मतलब बचा हुआ जो पोर्शन होता था, 3 क्वेश्चन आपको करने होते थे और 1 क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होता था, यानी कि टोटल 36 मार्क का ये पोर्शन है। इस तरह टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता था, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हालाँकि मैंने इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दिया है, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 से हट जाता हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूँ। या क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने 2 पार्ट दिए हुए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ, वो मैं समझा नहीं पाऊँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है, उस पे हम आ जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है, उस वो 8 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर बी जो है, वो 4 मार्क्स का है। अब आप बेटर पोजीशन से इसको समझ सकते हैं। उसने कहा ऑन 20th April 2021, M obtained a loan from bank for rupees 75 lakh to be utilized for construction of machinery, purchase of machinery, working capital, advance for purchase of furniture. क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में जो क्वेश्चन था वो ये था, इन मार्च 2022 कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड, डिलीवरी ऑफ फर्नीचर वाज नॉट रिसीव्ड एंड टोटल इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर द ईयर इज 10 lakh, करेक्ट?
अब जब ओरिजिनली ये क्वेश्चन था, अब सबको मालूम है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओरिजिनली जब क्वेश्चन था तो उसमें आपको सिर्फ ये कहा जाता था कि शो द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द लाइट ऑफ एएस 16। इस तरीके से वो क्वेश्चन देते थे, तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन, तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था। जो क्वेश्चन में तुम्हें जो सॉल्व करना पड़ता था डिस्क्रिप्टिव तरीके से, उसमें थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ता था, पहले उस स्टैंडर्ड के संबंध में आपको लिखना पड़ता था। उसके बाद फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करते थे कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी है वो क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है, फिर उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट करते थे। तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता था। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वो जो इंटरेस्ट होता था उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते थे। मैंने सॉल्यूशन करा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप इस लेवल पे अब कैसे देंगे, पॉइंट आपका ये बनता है। देखो यहां पर अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे फ्रेम कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मैंने वही रखा है। अब आपका क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको अब दो ऑप्शन दे दिए, दो की जगह तीन भी दे सकते हैं, एग्जामिनेशन में चार भी दे सकते हैं, फिलहाल मैंने दो दिए हैं और मैंने इनको लिख दिया 2 into 2 मार्क्स। इसका मतलब ये दो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना दिए। इस क्वेश्चन पर मैंने दो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना दिए। इसका मतलब अब अच्छी चीज आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे बड़ा फायदा तो उन बच्चों को है जिनको लिखने की बड़ी आफत होती थी, जिनको लिखने में बड़ा दर्द, बड़ा पेन महसूस होता था। और खास तौर से ऐसे बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी उतनी नीट एंड टाइडी नहीं थी, उनको भी बड़ा फायदा है, क्योंकि अब तुम्हें अपने डिस्क्रिप्टिव जो आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्टिव अभी भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे तो आप इनके आंसर दे नहीं पाओगे ना। ये क्वेश्चन क्या है मैं अभी पढ़ूंगा, लेकिन मैं जो आपके दिमाग में बात लाना चाह रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी समझ में बात आ जानी चाहिए, तो आपकी सारी आशंकाएं, डर जो है वो दूर हो जाएगा। अब समझना क्या है, अब ये क्वेश्चन मैंने देखो कैसे पूछा, मैंने कहा मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। हालांकि यहाँ मैंने वर्टिकल फॉर्म में दे दिए हैं, इजेंट हॉरिजेंटल फॉर्म में दे दिए हैं, हो सकता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में हो, थोड़ा सा स्पेस को कॉन्स्टेंट करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड अंडर एएस 16। पहला क्वेश्चन ये है कि कितना इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। ऑप्शन ए में आंसर मौजूद है, बी में भी, सी में भी, डी में भी। अब इसमें से आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना है। यानी कि जब आप अपने डेस्कटॉप पे, जो भी डेस्कटॉप आपको सप्लाई करा जाएगा, अगर आप सेंटर में एग्जामिनेशन देते हैं या अपने घर से देते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है, बस आपको माउस से क्या करना है, सीधा करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना है। ये आपको एफर्ट करना है। इसका मतलब अच्छी चीज ये है कि अब की बार तो आपके पास आंसर भी मौजूद है, करेक्ट। लेकिन अब मेन चीज जो आपके समझ में बार बार कई बच्चों के नहीं आती है, वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हमें उसका कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। याद रखो कि आपको सॉल्यूशन फिर भी करना पड़ेगा। पहले आप कैलकुलेशन करेंगे ना कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बस फर्क ये है कि जो काम आप बड़े नीटली करते थे, जिसकी क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए थी, अब उस प्रेजेंटेशन की हमें आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने कंप्यूट कर लिया कि 4 लाख रुपए का जो खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट का, और 6 लाख रुपए का खर्चा जो है इंटरेस्ट का वो हम रेवेन्यू के रूप में ट्रीट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में अब पहले मैंने उसको सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करने के बाद मैंने क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। फिर ये चार ऑप्शन दे दिए। अब मैंने देखा कि मेरा आंसर क्या आया था, 4 लाख आया था। तो मैंने देखा अब 4 लाख कहाँ लिखा हुआ है, इन ऑप्शंस में 4 लाख यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं 4 लाख पे मार्क कर दूंगा। ये फर्क पड़ेगा। इसी तरह इसी पर बेस्ड मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैंने जो अपना सॉल्यूशन करा है, जो मैंने अब रफ शीट में करा होगा, यहां तो मैंने ये आपको देने हैं इसलिए मैंने इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस करे हुए हैं, लेकिन अब आपको ये चीज अपनी रफ शीट में करनी है। अभी भी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। तो 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, और यहां मेरी इंस्टीट्यूट से इल्तिजा है कि आप क्वेश्चन इसी फॉर्म में रखें, बस उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स बना दें ताकि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना लगे। ये मेरी इंस्टीट्यूट से बहुत रिक्वेस्ट है, करेक्ट। तो और मुझे उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम भी करेगा। तो इस तरीके से 6 लाख पे आप मार्क कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है उसमें से 3 करने होते हैं। वैसे चलो हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में पार्ट ए मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, पार्ट बी में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अब किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, और समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पार्ट ए है। पार्ट ए का जो ताल्लुक है,
जो बैंकिंग कंपनी के चैप्टर से है पहले, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी हुई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ ए बैंक एज ए 31 मार्च 2021। बिल्स डिस्काउंटेड, इतने बिल तुमने डिस्काउंट करे। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट में बिगनिंग की डेट को, करंट ईयर की बिगनिंग की डेट को इतना बैलेंस था। उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, जो टोटल डिस्काउंट तुम्हें मिला करंट ईयर में 10,56,650 का मिला। इस तरह के क्वेश्चन तुमने बहुत करे हैं। फिर आगे तुम्हें दिया हुआ है कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनकी मैच्योरिटी की डेट करंट ईयर के बाद पड़ रही है और उन बिल का तुम्हें डिस्काउंट रेट भी दिया गया है। अब तुम्हें याद है ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या करते थे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंट के टॉपिक से है। सबसे पहले तो आप क्या करते थे इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर पहले तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट का मतलब ये भी होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब है कि उन बिल पे डिस्काउंट जो कि जिनकी मैच्योरिटी की डेट करंट ईयर के खत्म होने के बाद पड़ रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने रफ में जाएंगे, अपने रफ में कैलकुलेट करेंगे ये बिल। करेक्ट, ये बिल आपने देखे, जैसे कि पहला बिल 18,25,000 का है, उसकी मैच्योरिटी की डेट 056/2018 है, जबकि करंट अकाउंटिंग ये 18 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको 21 कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने 21 डेट्स थोड़ी मैंने चेंज कर दी हैं। चलो कोई बात नहीं। अब ये बिल है, ठीक है, 05/2021 को ये बिल है। तो 31 मार्च 2021 से लेकर के 05/2021 तक कितने दिन होंगे, पहले तो आप ये कंप्यूट कर लेंगे कि करंट ईयर के खत्म होने के 66 दिन के बाद ये बिल मैच्योर होगा। तो करंट ईयर के खत्म होने के बाद से लेकर के मैच्योरिटी की डेट तक 66 डेज हैं, उस पे फिर आप 12% के हिसाब से डिस्काउंट कंप्यूट कर लेंगे। तो इन तमाम बिल जो कि 31 मार्च या करंट ईयर के खत्म होने के बाद मैच्योर हो रहे हैं, करंट ईयर की डेट से इनकी मैच्योरिटी की डेट तक आप डेज कंप्यूट करते थे, फिर उस पे डिस्काउंट करके आपको पता लग जाता था कि ये जो डिस्काउंट है बेसिकली ये वो डिस्काउंट है जिसको हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी कहते हैं, या हम कहते हैं ये उन बिल से रिलेटेड डिस्काउंट है और उतने दिनों का डिस्काउंट है जो कि मैच्योरिटी की डे खत्म करंट ईयर के खत्म होने के बाद से लेके मैच्योरिटी की डेट तक बिलोंग करता है। इसी अमाउंट को हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट भी कहते हैं या अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अकाउंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट ईयर में जो आपको डिस्काउंट हुआ उसमें से इतनी हिस्से की इनकम को हम इनकम नहीं मान सकते। ये हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा करते थे। मेन पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व करना पड़ गया। करेक्ट, नंबर वन। उसके बाद फिर आप क्या करते थे? आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट में इतना है, फिर उसमें जो करंट ईयर में टोटल डिस्काउंट मिला उसको आप ऐड करते थे, तो टोटल डिस्काउंट की इनकम इतनी है। लेकिन मैंने कहा जो बिल अगले साल मैच्योर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो डिस्काउंट है जो कि तुमने कंप्यूट करा, जिसको कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट भी कहते हैं, वो हम माइनस कर देते थे, तो हमें पता लग जाता था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी एंट्रीज करा करते थे, जो ओपनिंग बैलेंस होता था उसको रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट का आप हिस्सा बना देते थे, तो इसलिए आपकी एंट्री होती थी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट, या सिंपली डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप एंट्री लिखते थे। फिर इस साल जो आपको डिस्काउंट मिला उसकी आप एंट्री करते थे। फिर अपने डिस्काउंट की इनकम में से कितने हिस्से को आपने इनकम नहीं माना उसकी एंट्री करते थे, और फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट आप क्रेडिट करेंगे आप उसकी एंट्री करा करते थे। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ये पहले क्वेश्चन की डिमांड भी होती थी। तो अब आपका एक बढ़िया चीज तो ये हो गई कि आपको ये एंट्री तो करने की, ये तो एंट्री का तो पार्ट ही चला गया जिसकी आपको बहुत दिक्कत होती थी। बस रफ में आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन को वो आपसे कैसे पूछेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर अब मेन क्वेश्चन था, पहले तो ये क्वेश्चन कैसे पूछते थे? Pass entries. Number one, show how much amount will be credited to profit and loss account and calculate the amount of what we call unexpired discount. तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा करते थे। लेकिन अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेगा, इसलिए पहले तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि तुम्हें कोई नए सिरे से नए तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस फर्क क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना, ये आपके लिए विन विन पोजीशन है, तो बेवजह की घबराहट बाबा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, हालांकि ये क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्मेट में 7 मार्क का था, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया 3 + 4 मार्क्स। इसका मतलब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं।
पहला क्वेश्चन 3 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क का है। इस पर बेस्ड एमसीक्यू क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर द बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं उन बिल से रिलेटेड डिस्काउंट कितना है जो जो कि जिनकी की मैच्योरिटी की डेट करंट ईयर के बाद पड़ रही है। तो तुमने वो कैलकुलेट करा था 4,25,000 जिसको कि हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी कहते थे। पहले तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी ना। अब आप देखो कि आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें इसका आंसर क्या है, यहां पर दिया हुआ है, तो इसको आप टिक कर देंगे। बस ये करना है। तो कोई चेंज आया आपके लिए तो डिस्क्रिप्टिव ही है। अभी भी आप एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर ही दे रहे हैं, आप जैसे देते थे। तो अपने दिमाग से ये डर, ये शिकायतें बिल्कुल दूर कर दो कि कुछ नया आपको करना पड़ रहा है, बल्कि आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्योंकि अब आपको प्रेज़ेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ़ शीट में अपना काम करेंगे, तो आपका काम भी तेज़ रफ़्तार से हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल्स टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफ़िट और लॉस अकाउंट। वो जो हमने ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें डिस्काउंट ऐड करा, फिर क्लोजिंग बैलेंस, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट का माइनस करा। तो जो भी आएगा आंसर आपका, आप यहाँ उसको तलाश लेंगे और उस पे आप उसको टिक मार्क कर देंगे। तो आपने देखा कि कोई चेंज स्ट्रेटेजी में आया नहीं आया। ये है पेज नंबर 5। पेज नंबर 4 मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, इसी तरह प्रपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है। कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आर रिफंड ऑफ टैक्स है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट है। अब पहले जब तुम्हें ये क्वेश्चन मिलता था तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ता था, तभी तो तुम ये आंसर फाइंड करोगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपना नेट प्रॉफिट का डिफरेंस देखोगे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस आप माइनस करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना है, तो जो कि 2 लाख है। करेक्ट। फिर उसमें क्या करते थे हम, प्रपोज डिविडेंड ऐड करते थे। प्रपोज डिविडेंड हमने ऐड करा, इंटरिम डिविडेंड हमने ऐड करा, ट्रांसफर टू रिजर्व जो भी डिफरेंस है उतना हमने ट्रांसफर टू रिजर्व करा। प्रोविजन फॉर टैक्स उसने कहा इस साल हमने बनाया 70,000 का। रिफंड ऑफ टैक्स का ध्यान रखना है कि ये माइनस करा जाता है, रिफंड ऑफ टैक्स। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस और इनकम का आपको ख्याल करना पड़ेगा। जैसे कि उसने लिखा है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, तो ये तुम्हारे लिए इनकम है, इजंट इट और नॉट? तो अपनी इनकम को माइनस करोगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, वो आप ऐड करेंगे। तो इस तरह प्लस माइनस करने के बाद आपको ये पता लगेगा फिर कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड अदर आइटम 6,76,500 है। आपने पहले डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको सॉल्व करा, लेकिन आपने रफ में करा। अब आपको आंसर पता लग गया। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, आपको मार्क करना है, दैट्स ऑल। तो इसमें क्या चेंज आया? कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। और मैं बार बार इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन के फॉर्मेशंस में ज्यादा चेंजेस ना करें, सिर्फ क्वेश्चन पेपर उसी फॉर्मेट में बनाएं। और जो क्वेश्चंस देते थे, जो डिमांड या रिक्वायरमेंट्स होती थी, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा चेंज नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं लगेंगी, और दोनों तरफ से कंट्रोवर्सीज का जो आलम है वो कम होगा, और जो कि सभी के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि you have to take this particular point that don't make what we call much greater varied changes, keep the formations intact, just turn the requirement of the question into MCQ format so that the student doesn't feel what we call great variation and they are in a position to actually do justice to their preparation. Correct? तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें इंस्टीट्यूट भी। तो ये इस तरीके से, इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन जो मुझे पॉइंट बताना था वो मैंने अब आपको बता दिया है कि आपकी डिस्क्रिप्टिव जो प्रिपरेशन चल रही थी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, उसमें क्यों बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, ये बैलेंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन में तुम्हें डाटा दिया हुआ है और तुम्हें इसको देख करके अपनी बैलेंस शीट बनानी होती थी। अब वो तो और भी आफत का काम था। देखो आपका काम कितना सेव हो गया,
सेव हो गया कि नहीं? अब इस ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का उन्होंने पूछा था और मैंने इसके क्या करे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इसके 7 एमसीक्यू बना दिए और ये मैंने क्या लिखा है 1 1 इसका मतलब पहला एमसीक्यू 1 मार्क का है, दूसरा एमसीक्यू 1 मार्क का है, फिर मैंने लिखा है तीसरा भी एमसीक्यू 1 मार्क का है, फिर उसके बाद 2 2 2 और लास्ट 3 यानी कि बाद के 3 एमसीक्यू 2 2 मार्क्स के हैं और लास्ट एमसीक्यू जो है वो 3 मार्क्स का है। 7 मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रफ में डिस्क्रिप्टिव, हालांकि मैंने तो खैर इसको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसे नॉर्मली दिया जाता है हमने दिया है, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको करना तो पड़ेगा, चाहे रफ में करें, बस अच्छी बात ही है। अब आपका टाइम यहाँ पर बहुत सेव हो जाएगा, फिर इनसे रिलेटेड आप आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन बैलेंस शीट, इसके 4 विकल्प तुम्हें दे दिए जाएंगे। तो कुछ लोग, वैसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो बिना डिस्क्रिप्टिव हुए भी दिया जा सकता है, इजंट इट? इसी तरह अमाउंट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट, तो शेड्यूल 3 जो आपका है उसको आप अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि अदर करंट लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी अदर करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, जस्ट समझाने के लिए, जैसे कि अदर करंट लायबिलिटी मैंने यहां लिखा हुआ है। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, कॉल्स इन एडवांस से, इनका टोटल जो हो गया तो ये अदर करंट लायबिलिटी हो गई। तो 70 रुपीज 70,000, क्योंकि फिगर जो है थाउजेंड्स में है, तो आप देखो यहाँ के 70,000 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अमाउंट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, इसी तरह अमाउंट ऑफ अदर करंट एसेट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ कमिटमेंट्स का अमाउंट क्या है, बैलेंस शीट टोटल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को फेस करेंगे। यानी कि आपने देखा फॉर्मेशंस में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की जो डिमांड और रिक्वायरमेंट थी उसको जो है एमसीक्यू में टर्न कर दिया जाएगा। और यही कोशिश हमने करी है। यही कोशिश कोशिश करने के दो कारण थे। एक तो बच्चों को बताना, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के सामने भी ये लाना कि इस तरीके से अगर होगा तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी और जो इंस्टीट्यूट का लक्ष्य भी है वो भी पूरा होगा, ऑब्जेक्टिव भी, बच्चों को भी कम प्रॉब्लम होगी, सारी पार्टीज के लिए ये एक बेहतर रहेगा। तो यहाँ मेरी प्रीमियर बॉडी सीएमए से बहुत ज्यादा दिल से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, बल्कि गुजारिश है, मैं यूं कहूंगा कि वो ज्यादा वेरिएशंस ना लेकर के आए और क्वेश्चन की फॉर्मेशंस को रखें। ये सिंपल पेपर मैंने बच्चों के साथ साथ आपके लिए भी इसीलिए बनाया है कि इस क्वेश्चन के बेस पर आपकी कोशिश होनी चाहिए। ये एक तरीका पेश करा गया है, या डिफरेंट क्वार्टर से भी आप और क्या बोलते हैं ओपिनियन रिसीव करने के बाद इसी फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन होता था अधिकतर वो शॉर्ट नोट से रिलेटेड होता था, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते थे। अब उसी क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, जैसे जो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसमें था राइट शॉर्ट नोट ऑन बोरोइंग कॉस्ट, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 3 पार्ट तो मैं दिए थे। अब मैंने उसी क्वेश्चन को क्या करा, 4 स्टेटमेंट दे दी बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। अच्छी बात यह है कि अब आपको डिस्क्रिप्टिव तो होना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ तो यहां लिखा ही हुआ है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो नहीं है करेक्ट। अब जो पहली 3 है वो तो करेक्ट है और चौथी मैंने लिखी है कि बोरोइंग कॉस्ट अप्लाइज टू पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन्स के लिए तो बोरोइंग कॉस्ट होता नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट की पर्सनल लोन पे थोड़ी अप्लाई करती है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, इसको मैं मार्क आउट कर दूंगा। इसी तरह शॉर्ट नोट में आपका क्वेश्चन होता था मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट से मैंने क्या करा, एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड मैंने 4 स्टेटमेंट दे दी। अब इसमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी इनकरेक्ट है। अब इसमें एक्चुअली जो मैंने यहां पर लिख दी है वो मैंने सारी करेक्ट ही लिख दी है, ऑल आर करेक्ट। तो तुम्हें ऑप्शन ऐसा दिया होगा उस केस में कि ऑल मे बी करेक्ट या इनकरेक्ट, वो आप जो भी आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन में मौजूद होगा। फिर इसी तरह से फिफ्थ में जो ओरिजिनली जब ये क्वेश्चन जो पेपर है आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर से, उसमें था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजनिंग अरेंजमेंट फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसी क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू में फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तुम्हें ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से बना दिया कि प्रोविजनिंग रेट फॉर स्टैंडर्ड लोन्स, स्टैंडर्ड लोन के लिए प्रोविजनिंग का रेट क्या है सबको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से प्रोविजनिंग रेट फॉर सब स्टैंडर्ड लोन्स विच आर सिक्योर्ड, इसी तरह से प्रोविजनिंग रेट फॉर सब स्टैंडर्ड लोन्स जो अनसिक्योर्ड हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वेयर सर्टेन सेफगार्ड सच एज एस्क्रो अकाउंट्स आर अवेलेबल। तो इस पेपर को देखने के बाद अब आपके दिमाग में क्या बात आई, सच सच बताना, आपका डर दूर हुआ या नहीं हुआ? होना चाहिए। तो मुझे भी मालूम है कि जब कोई एकदम से बदलाव आता है ना, घबराहट सी होती है। तो आपने देखा कोई चेंज नहीं है, नंबर 1। जैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी कर रहे थे
जो भी आपकी मेथोडोलॉजी थी, जो भी तैयारी करने का आपका अंदाज था, सलीका था, उसी तरीके को आप बरकरार रखें, कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इधर-उधर की बातों में, बहकावों में आने से बचें। वो आपकी पढ़ाई और आपकी लाइफ दोनों के लिए बहुत खतरा होता है। अपने पॉइंट नंबर 3, सेल्फ बिलीफ रखें, अपने पर भरोसा रखें। करेक्ट? सेल्फ बिलीफ और सेल्फ इंस्टिंक्ट दुनिया के सबसे मेन क्राइटेरिया है जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए। नंबर 4, क्या जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना फायदा होगा? बिल्कुल गलत। आप जितना डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा। नंबर 5, सर एग्जामिनेशन में अब हमें डिस्क्रिप्टिव तो सॉल्व नहीं करना है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने आंसर देख लिया। डिस्क्रिप्टिव आपको अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा, रफ शीट में करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और करेक्ट ऑप्शन पे आपको मार्क आउट करना पड़ेगा। फायदा फायदा उन लोगों को है जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं थी और जिनको लिखने में बड़ा दर्द महसूस होता है। दूसरा फायदा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको आंसर्स लिखने पड़े थे, उनके अब वैकल्पिक आंसर मौजूद होंगे तो आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इन चीजों को सुनने के बाद अब आपकी समझ में बात अच्छी तरह से आनी चाहिए। So this was the special session which we have conducted. Quite obviously, if some among you are from Group 1, they do not feel neglected. For them also, I'm going to upload objective type sample paper very soon. In fact, tomorrow, hopefully by tomorrow itself. So keep in touch with me also by way of my what we call YouTube channel, and we on our part will try to what we call not only build your confidence, give support both moral and what we call through other means. And we on our part will definitely strive to bring the best for you and to erase out all your hunches. तो जितने भी आपके hunches का मतलब आशंकाएं, जितनी भी आपकी आशंकाएं हैं ना, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से कि आपको इधर उधर की बातों में ना करके जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही पढ़ाई करनी है, उसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आपने अब देख लिया किस तरह की फॉर्मेशंस क्वेश्चंस की होंगी। तो इन चीजों के बाद अब मेरे ख्याल से शिकायत के लिए किसी किसी को कोई मौका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही है। सब किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बल्कि इसमें फायदे मुझे आपके लिए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो और वैसे भी अब जाते जाते ना मैं तुम्हें एक आज शेर सुनाता हूँ। तुमने कभी सेशंस इतने लिए हैं, तुमने आज तक हमेशा मेरे को बड़े सीरियस अंदाज में ही देखा है। इजंट इट और नॉट? अच्छा सर, ऐसी बात है, बिल्कुल। और ये शेर मैं क्यों सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और उसके बाद तो मुझे किसी की कोई शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। शेर कुछ इस तरीके से है कि ये जिंदगी है तो जिंदगी में बदलावों का तो सिला है ही। जिंदगी है तो उसमें चेंजेस तो आती रहेंगे ना। मैंने वो शेर ना अभी अभी बनाया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि शेर की कुछ लाइनें मुझे याद रही और कुछ तो मुझे याद नहीं रही। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कैसे फिर? अब चलो अगली बार जब मिलेंगे तो अगली बार हम आपको सुना देंगे, ठीक है ना? तो जिंदगी में वो कहते हैं ना, चेंजेस तो आते रहते हैं, बदलावों का कोई सिला नहीं है जिंदगी में। हाँ, मुझे याद आ गया, जिंदगी है इसमें बदलावों का कोई सिला नहीं। मतलब इट्स लाइफ, चेंजेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये जिंदगी है, इसमें बदलावों का कोई सिला नहीं, लेकिन कर अपनी हौसला अफजाई इस तरीके से कि हो तुझे कोई गिला नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को इतना स्ट्रांग करो कि डू नॉट हैव एनी कंप्लेन। जिनकी थोड़ी हिंदी कमजोर है उनके लिए फिर से, इट्स लाइफ, change is a part and parcel of the life. Make yourself strong enough so that you do not have any complaint of it. करेक्ट? जिंदगी है, इसमें बदलाव का कोई सिला नहीं, कर मजबूत अपने को इतना कि हो इससे कोई गिला नहीं। तो इन शब्दों के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और लेकिन हम अपनी तरफ से आपके साथ हमेशा की तरह टच में रहेंगे। उम्मीद है कि सेशन आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आया होगा और आपकी कुछ आशंकाएं वगैरह दूर हुई होंगी। इन शब्दों के साथ फिर अब हम चलते हैं आपसे।